Students, uh, welcome to physics class. So today our topic is scientific notation, in which we see what is meant by a scientific notation, and then we will see how to convert a simple number into a scientific notation and or a standard form of a scientific notation, and vice versa, means that how we can convert this standard form into a simple number. So let's start. Okay, scientific notation. In scientific notation, a number is expressed in some power of 10 multiplied by the number between 1 and 10. Now इसमें आपने देखना ये है, सबसे जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके पास जैसे आपने प्रीफिक्स में देखा था कि उसमें हम लोग 10 की पावर के मल्टीपल्स में लिखते थे और उसको फिर हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते थे कि ये मेगा है या किलो है या मिली है, माइक्रो है, जो भी हम लोग नाम उसको स्पेसिफिक कोई ना कोई नेम दे देते। यहाँ पर ऐसा नहीं है, नेम नहीं देंगे लेकिन 10 की पावर में लिखेंगे, और जो नंबर मल्टीप्लाई होगा ना इसमें 10 की पावर में, लेट्स सपोज यहाँ पर आप देखें कि 262,750 है, तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। वो ये हैं कि मैं पॉइंट को यहाँ से ये 62.75 इंटू 10⁻³ ये भी साइंटिफिक नोटेशन बन गई, 6.275 इंटू 10⁻⁴ ये भी साइंटिफिक नोटेशन बन गई, या 0.6275 इंटू 10⁻⁵ ये भी तीनों की तीनों साइंटिफिक नोटेशंस ही हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब अगर आप देखें ये 62.75, इट इज़ नॉट बिटवीन 1 एंड 10, इट इज़ ग्रेटर देन 10। हाँ, 6.275 is in between 1 and 10. Is it clear? So you can see option B is the standard form. Option C is not between 1 and 10, it is less than 1, means it is 0.6, so it is less than 1. Is it clear? So we can say this option B is in standard form. Is it clear? Now let's see how to convert a simple number into a standard form. It's very simple, but before going for this, remember these points. When a point is moved from right to left side, it means when you are moving your decimal point which is on the right side and you move it on the left side, it means converting a larger number into a smaller, then the power of 10 will be positive. It is same as we see in the prefixes. Now when the point is moved from right side, left side to the right side, means like in this example, when we move over this point, this decimal point from left side to the right side, then the power of 10 will be negative. Is it clear? And you see that in all these examples, the number multiplied with this 10 की power of 10 should be in between 1 and 10. Now let's see how to convert these number into a standard form. Now we have 7,000,000 meter per second. Now we have how many digits? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 digit number, but it like in prefixes we move up to only fixed points, means we can move up to 2 points or 3 points or 6 points or 9 points, but यहाँ पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सबसे पहली जो चीज़ है, आपने पॉइंट को ऐसा मूव करना है कि आपके पास जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान आ जाए, या आप यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आप यहाँ से इसको देखना शुरू करें ना, इस तरफ से लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करें, तो 7 is a non-zero number. So this is the first non-zero number. So move your point from here to here. Okay.
इज इट क्लियर? सो आपने पॉइंट को 7 के बाद मूव कर देना है. सो ये 7.0. अब आप इन जीरोस को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और ये आ जाएगा 7.0 या सिर्फ 7 लिख लें into 10 raised to power. Now how many points you move? 1, 2, 3, 4 and 5. You move 5 points from right side to the left side. That is why the power of 10 will be positive and it is plus 5. Is it clear? So this is called standard form of a scientific notation, because you multiply this number with the power of a 10 and the number which is multiplied with the power of 10 is between 1 and 10. Now similarly 4800,000 watt. Now what you will do, you will move your point before first non-zero number. Now if you see from left side, what is the first non-zero number? It is 4. So move your point from here to after 4 and before 8. So it will be 4.8. It will be 4.8 and skip these zeros. You can skip these zeros, okay? So it will be 4.08 into 10 raised to power. Now how many points you move? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you move 6 points. That is why your answer will be 4.8 into 10 raised to power 6. And you see, this is a standard form of scientific notation, as this number is represented in a power of a 10 and a number multiplied with this power of 10 is between 1 and 10. Now the next number is 30300 and then 000,000 hertz. It's a quite large number and you need to represent this number in a scientific notation. Simply move your point with after first non-zero digit. So first non-zero is 3. So I move my point after 3, so it will be 3.03. It will be 3.03. Take only these values. So 3.03 into 10 raised to power, and you move 10 digits from the right side to the left side. That is why the power of 10 will be positive 10. So this is how you convert a number, a large number, into a scientific standard form. So power of 10 in this case will be positive. Now let's see if we have a number like 0.00002 grams. Now how you convert? Now अब आपने करना ये है कि आपने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मूव करना है. क्या ये नॉन जीरो है? नहीं, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है. तो 2 इसमें नॉन जीरो है. पहला सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा? इसमें 2 है. तो आपने पॉइंट को 2 के बाद मूव करना है यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा 2, और ये सारी आपने सारे स्किप कर देने हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर. अब देखें आपने कितने डिजिट मूव किए. पॉइंट कहाँ पर था? यहाँ पर पॉइंट था. अब इसके बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 digits. So we write 2 into 10 raised to power minus 5. So this is the standard form of a scientific notation. Now similarly in this example it is 0.0000081. Now move your point from this point to the first non-zero number, and the first non-zero number is here in this case is 8. So it will be 8.1. okay, point, you move this point after 8, it will be 8.1 into 10 raised to power how much? As you move your point from left side to the right side, so power of 10 will be negative, and it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You move 6 points from left side to the right side, so that is why its power will be 10 raised to power minus 6. So this is how you convert a number, a simple number, into a standard form. Now लेट्स सी कि अगर आपके पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, आपके पास एक सिंपल नंबर
स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो इसको सिंपल नंबर में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको 10 की पावर देखनी पड़ेगी और उसके मुताबिक आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने पॉइंट आगे जाना है। अब आप देखें यहाँ पे 7.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लगा, ये जो एरो लगाया वो मैंने सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है कि यहाँ से आपने आगे, यानी ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट। अब आपने डिसाइड करना है पावर ऑफ 10 से कि आपने लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे मूव करना है या लेफ़्ट साइड पे मूव करोगे। तो अब आपने यहाँ पे किस से डिसाइड करोगे बच्चों, ये पावर ऑफ 10 से। तो अगर तो आपके पास पावर ऑफ 10 पॉजिटिव है तो आपने राइट साइड पे मूव करना, और अगर पावर ऑफ 10 नेगेटिव है तो आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। ये रूल आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जितने डिजिट, जितनी पावर होगी उतने डिजिट आपने मूव करना है। अब मुझे ये पता चला कि पावर ऑफ 10 पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखिए पावर ऑफ 10 क्या है, इसके साथ पॉजिटिव 5 है। तो मैंने, इसका मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट है, यानी ये जो 0 पॉइंट जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ से मैंने राइट साइड पे मूव करना है, इतना मुझे पता लग गया है। अब कितना मूव करना है वो आपने पावर देखनी है, ये 5 है तो आपने 5 डिजिट मूव करना है। तो अब आपने यहाँ पे रेफरेंस के बाद आपने देखो यहाँ से आपने 5 डिजिट मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 मैंने 5 ज़ीरोज़ लगा लिए क्योंकि मेरे पास 7 के अलावा कोई और नॉन ज़ीरो नंबर नहीं था, तो मैंने जो है वो 5 ज़ीरोज़ और लगा दिए। तो ये आपके पास आ गया 7। अब यहाँ से अपने पॉइंट ख़त्म कर देना है, 7 0 0 0 0 0 मीटर पर सेकेंड। तो you move 5 digits to the right side because power of 10 is positive. I hope it is clear now. Now it is 4.8 into 10 raised to power 6. 4.8 into 10 raised to power 6. Now you see that reference point is here. ओके यहाँ पे है और पावर कौन सी बच्चों क्या है, पॉजिटिव 6 है। तो आपने राइट साइड पे मूव करना है, यानी यहाँ से आपने राइट साइड पे मूव करना, और कितना मूव करना है, 6 डिजिट। अब देखें पॉइंट यहाँ पर था ना, तो 1 डिजिट तो 8 होगी, ठीक है, 1 डिजिट तो आपके पास 8 हो गया। बाकी कितने डिजिट्स आपको चाहिए, 5। तो आपने उन 5 डिजिट्स की जगह को पूरा करने के लिए आपने 5 ज़ीरोज़ लगा देने। तो ये आ जाएगा 4 8 0 0 0 0 0 0 वॉट। सो move 6 digit to the right side because power of 10 is positive. Now let's see what you will do if your power of 10 will be negative. Now अब आप देखें ये 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -5 है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, ये वाला है आपके पास रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है रेफरेंस पॉइंट। अब आपने चूँकि -5 है तो इसका मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है, यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करना है। और कितने पॉइंट मूव करना है, 5 डिजिट्स तक मूव करना है। अब यहाँ से लेफ़्ट पे जाते हुए आपके पास 2 एक आ रहा है ऑलरेडी, तो 2 के अलावा आपके पास और कितने डिजिट्स आपको चाहिए ताकि 5 डिजिट टोटल हो जाए, 4 नंबर और चाहिए। तो 4 ज़ीरोज़ आपने डाल देने हैं। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 2 और पॉइंट आपने पहले यहाँ पे डाल देना है। तो ये आपके पास 0.00002 ग्राम्स आ जाएगा। So move 5 digit to the left side because power of 10 is negative. Now similarly 8.1 into 10 raised power -6 है। अब यहाँ पर आपने गौर ये करना है कि आपके पास पावर ऑफ 10 माइनस है, नेगेटिव है, तो आपने इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। ये तो हमें पता लग गया। कितने डिजिट मूव करना है, 6 डिजिट मूव करना है। तो 1 डिजिट आपके पास 8 हो गया, इसको काउंट नहीं करोगे। आपने पॉइंट से जिस तरफ मूव करना है ना, उसके दरमियान में जो वैल्यूज़ आ रही होंगी, जो डिजिट्स आ रहे होंगे, उनको आप काउंट करोगे, उसके अलावा नहीं काउंट करोगे। जैसे मेरे पास पॉइंट अभी इस जगह पर है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पर है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो ये 1 बीच में आ रहा है, 8 बीच में आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो अब आप, इसका मतलब है यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे और कितने डिजिट मूव करेंगे, 6। तो एक तो आपके पास 8 हो गया, बाकी 6 को पूरा करने के लिए आपको 5 ज़ीरोज़ चाहिए, तो आपने 5 ज़ीरोज़ ऐड किए। तो ये आ जाएगा 0। ये वाला 0 काउंट नहीं होगा बच्चों, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 0.0000081 और
ये सिंपल मीटर में आ जाएगा. तो यू मूव 6 digit टू द लेफ्ट साइड बिकॉज द पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव. इज इट क्लियर? आई होप सो. ये आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा. अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है आप पूछ सकते हो. सो अच्छा, इसके अलावा ये आज जो हमारी एक क्विक एक्सरसाइज है, क्विक क्विज है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. अगर आपने ये जो अभी हम लोगों ने प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक भी पढ़ा था और फिर हमने साइंटिफिक नोटेशंस वाला भी टॉपिक पढ़ लिया था, तो उसमें ये क्विक क्विज करना हमारे लिए आसान होगा. तो क्विक क्विज है, नेम 5 प्रीफिक्सेस दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. तो जस्ट नेम एनी 5 prefixes that milli 10 raised to minus 3, centi is 10 raised to minus 2, kilo is 10 raised to power 3, mega is 10 raised to power 6 and giga is 10 raised to power 9. ये आपने मोस्ट कॉमनली सुन लिए होंगे. किलो का, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या गीगा बाइट्स जो आपने कंप्यूटर के लिए जो GB यूज़ करते हो, GB और MB यूज़ करते हो, तो वो भी आप कॉमनली यूज़ होते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द सन इज़ 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस नंबर इन एन ऑर्डिनरी होल नंबर एंड इन साइंटिफिक नोटेशन. तो पहले तो हमें समझना है इस नंबर को ऑर्डिनरी नंबर में कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पर आप देखें कि ये लिखा हुआ है 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर. तो मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 1 मिलियन का मतलब है 10 की पावर 6 मीन्स 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. ठीक है, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3. तो अब डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ जो है वो 150 है, तो आपने ये 150 लिख दिया. यहाँ पे देख रहे हैं सन इज़ 150, तो पहले 150 लिख दिया. अब आगे क्या कह रहा है, मिलियन किलोमीटर. तो मिलियन होता है 1 के साथ 6 ज़ीरोज़, यानी आपके पास ये 1,000,000 या 1 × 10 raised to power 6. जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 150,000,000 मीन्स ये आपके पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ मीन्स ये आपके पास 15 करोड़ किलोमीटर्स आपके पास ये आ गया. तो ये ऑर्डिनरी होल नंबर है. ठीक है, अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. तो वो अभी हम लोगों ने देखा भी है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कि आपके पास पॉइंट यहाँ पर है. ठीक है, अब आपने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपने इधर मूव करना है. ठीक है, तो ये आपके पास इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे पॉइंट आएगा, तो ये 1.5 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 1.5 × 10 raised to power आप देखिए कितने पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10 raised to power 8. इसको डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है. या दूसरा मेथड आपके पास सिंपल ये है कि आप ये 150 और मिलियन कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है किलोमीटर्स. अब आपने इस 150 से यहाँ से पॉइंट इधर मूव किया, तो आपने 2 डिजिट्स मूव किया, तो ये 1.5 आ जाएगा × 10 raised to power 2 × 10 raised to power 6 जो मिलियन का आपने पहले लिखा हुआ था. अब ये दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ये आप मैथमेटिक्स में रूल पढ़ोगे. तो एक तो ये मेथड है. दूसरा आपके पास सिंपल मेथड जो मैंने अभी आपको बता दिया, आपने पहले नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ था 1, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, 150,000,000 और 0 ये नंबर पहले लिखा हुआ था और ये 7 किलोमीटर में था. तो आप अपने सिंपल क्या करना है, इन स्टेप्स की बजाय आप सिंपल ये कर लो, यहाँ से पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव किया. ठीक है, और यह के पास आ गया 1.5 × 10 raised to power. Now how many points you move, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. You move 8 points, so it will be 1.5 × 10 raised to power 8 kilometer. This is the standard form of a scientific notation. So you can write this number like this way. Okay, now
लास्ट क्वेश्चन, राइट दीज नंबर्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन। अगेन ये हमने अभी बिल्कुल लेक्चर को किया है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कैसे कन्वर्ट करना है कि पॉइंट को आपने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो पे, तो इट विल बी 3 × 10 raised power, you move 8 digits from right to left side, so power of 10 is positive and it is 8 because you move 8 digits. Similarly 640000 मीटर है, तो इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपने देखो पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से आपने मूव किया और 6.4 × 10 raised power कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे गलती है, तो ये आप इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास 10 की पावर 6 आ जाएगा। नाउ सिमिलरली आप पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे है और आपने पॉइंट को यहाँ से इधर मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इट विल बी 1.6 × 10 raised power 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So you move 9 digits from left side to right side, so the power of 10 will be -9, so it will be 1.6 × 10 raised power -9. सिमिलरली 0.0000548 सेकेंड्स है, तो इसको आपने जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मूव करना है। अब फर्स्ट नॉन जीरो इन सब में से 5 है, पहला जो लेफ्ट से राइट साइड से आगे देखते जाओ तो ये फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, 5 है, तो 5 के बाद मूव करना है, तो इट विल बी 5.48, क्या आ जाएगा 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो आपने 5 डिजिट्स मूव किया और लेफ्ट से राइट मूव किया, तो पावर ऑफ 10 विल बी -5। सो ये हमने क्विक क्विज भी कर लिया और इसमें साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से भी जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख ली। अब अगर ये लेक्चर जो है वो आपने अच्छी तरह इसको समझ लेना है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।